Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namran. Today I will teach you about inquiry method. Inquiry method, it stimulates questions and issues in a mind. These are the general objectives of this unit. Let's start with some introduction. According to Kahan, inquiry based learning is a student centered approach and paradigm shift from passive to active learner. इंक्वायरी बेस्ड मैथड में क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपका बॉर्डर इसका पर्सपेक्टिव है बिकॉज टीचिंग लर्निंग की न्यू अप्रोचेज हैं जिसकी रेंज को वास्ट करती हैं. टीचर का रोल जो है वो गाइड करने का है, वो सपोर्टिव है, गाइड करे, फैसिलिटेट करे स्टूडेंट्स की लर्निंग को और स्टूडेंट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्लासरूम में टू मेक द फोस्टर और बिल्ट अप द क्रिटिकल थिंकिंग. डेफिनेशन ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी इज डिफाइंड एज अ सीकिंग ऑफ ट्रूथ, इंफॉर्मेशन और नॉलेज. Seeking information by questioning. Individuals carry on the process of inquiry from the time they are born until they die. This is true even though they might not reflect upon the process. Infants begin to make sense of the world by inquiring. ठीक है, वो कह रहे हैं जैसे बच्चा इन्फेंसी पीरियड में सिर्फ अपनी सेंसरी मोटर स्किल्स को ब्रेड कार्ड ला के अपनी सेंसेस की बेस पे जो है वो अपने इर्द गिर्द गिरदों नवा से जो है वो मालूम होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है. तो जो सीखने का अमल है इंफॉर्मेशन का, इंक्वायरी का, वो सब वो इन्फेंसी पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है. और नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है, सच को तलाश करने के लिए स्पेशली. तो इंक्वायरी बेस्ड मेथड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लर्निंग प्रोसेस इंसान की ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है दुनिया में आता है बॉर्न यानी बर्थ टाइम से लेकर डेथ तक जारी रहता है. इंक्वायरी बेस्ड मेथड इन एजुकेशन. एजुकेशन इसका क्या रोल है? आस्क यानी क्वेश्चन आंसर करना, इन्वेस्टिगेट ट्रूथ को तलाश करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्रिएट, डिस्कस, रिफ्लेक्ट. एडवांटेजेस ऑफ इंक्वायरी मेथड. देयर आर सम एडवांटेजेस. बी इंटरेस्टिंग एंड enthusiastic. Get students talking to each other and learning from the peer. Promote the use of accurate current information resources as students research their learning issues. Establish a good learning environment for the group. Students develop skills in critical and creative thinking. So these are the some advantages of inquiry method. It may enhance or give confidence among the students to for self-directing learning or self-regulation, team building, communication skills, project management, problem solving, and students get to know one another better and make friends. There are some limitations and disadvantages of inquiry method as well. The problem lies with the assessment of inquiry instruction. And major problem with inquiry programs is that valid acceptable measures of the outcomes of inquiry based methods are hard to find or difficult to interpret. Inquiry learning is also difficult to quickly access and analyze through testing. Multiple choice questions, the preferred mode of standardized testing, are not readily adapted to measuring the process skills needed for critical thinking. ठीक है, वो कहने कि इसके लिए कोई आपको इस लर्निंग को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. फ़ौरन से आप बता नहीं सकती है, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, टेस्ट बेस्ड साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो सकते हैं. लेकिन थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस ये होती है कि इतनी क्रिटिकल थिंकिंग को हर लेवल को जो है मेजर नहीं करते हैं, बल्कि लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जो है वो ये जाते हैं. Structured short answer questions have the ability to measure problem solving abilities as well as knowledge recall, but are more times consuming to develop and scores. Time spent in the study outside the class is a factor of concern for both instructor and students alike. It is too much time consuming. तो कहने अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन से बनाते हैं तो उसके लिए भी आप बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बस जनरल नॉलेज लेवल को मेजर करते हैं. इसकी स्कोरिंग भी डिफ़िकल्ट होती है और ये टाइम टेकन भी होता है. The scope of inquiry method is limited in terms of content. Also, the effective applications of this approach requires motivated and mature students. The teacher also need to be well competent in planning, designing, conducting and monitoring the inquiry based method. तो टीचर को कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. और कुछ इसकी लिमिटेशंस को हम देखें एडवांटेजेस के साथ साथ, तो वो कह रहे हैं कि गिव बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, बट डिसएडवांटेज है नॉट एप्लीकेबल अंडर एवरी एजुकेशन करिकुलम, और हर सिचुएशन में एप्लीकेबल भी नहीं होता. मेक क्रिएटिव टू स्टूडेंट्स और इट ओनली गेट्स द डिज़ायर आउटकम्स इफ़ द टीचर वुड बी डायनामिक इन वाटर.
provoke through thoughts of students due to its verification and experimentation process, but it is not effective on every type of learners. There are basic three types of inquiry method: inductive, deductive and scientific approach. Inductive method में जैसे कि हमें पता है कि हमने क्या करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू इंक्लूड, टू एंगेज. सो इंडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज टू एंगेज स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, लॉजिक, जनरल आइडियाज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। जनरेट आइडियाज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी हम स्पेसिफिक से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना से हम जनरल यानी सिंपल फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं इन द इंडक्टिव मेथड. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड में है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, केस बेस्ड है और जस्ट इन टाइम टीचिंग है. While the deductive method of inquiry is entirely opposite to the inductive method, in which form we can explain from general to complex phenomena among the topic or phenomena or certain subject or curriculum. Deductive method in the teaching is to give theories or to present something as it is, यानी generate ideas from general to specific. हम इसमें आसान से मुश्किल की तरफ बच्चों को लेकर जाते हैं. और डिडक्टिव मेथड में कौन कौन सी होते हैं, इसमें थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ऑब्जर्वेशन है और कंफर्मेशन है. जबकि इंडक्टिव मेथड में थ्योरी, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, पैटर्न और ऑब्जर्वेशन इंक्लूड है मेथड्स में. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इंडक्टिव मेथड स्लो प्रोसेस, डिस्कवरी मेथड फुल ऑफ एक्टिविटी, गिव्स न्यू नॉलेज, while inductive method fast process, verification method less activity, opportunities, does not give new knowledge. Scientific approach की हम बात करें, it is an approach to seeking knowledge, or we can say a systematic process for investigating truth or acquiring new knowledge containing principles of correcting old knowledge. ठीक है, न्यू नॉलेज को आप करेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच जो है यूज़ कर सकते हो, नॉलेज गेन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. स्टेप्स इसके कौन से हैं? स्टैंडर्डाइज स्टेप्स जो हैं इसके हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन. ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, नेचुरल सेटिंग में कर सकते हो, टू सी समथिंग बाय हैविंग पर्पस इन माइंड और रन, और अनइंटेंशनल समटाइम चीज़ों को इंटेंशनली ऑब्जर्व करते हैं, समटाइम अनइंटेंशनली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे होते हैं. हाइपोथेसिस बिल्डिंग में क्या करते हैं, इंटेलिजेंस गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, हम इसमें स्टेटमेंट बनाते हैं और हम कोई असम्पशंस क्रिएट करते हैं. फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम एक्सपेरिमेंट में से प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस ऑफ द टेस्ट द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है. फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, टू लुक विद इन एवरी एक्सपेक्ट so that to accept or reject the hypothesis. उसके बाद हम कंक्लूजन फाइनल स्टेज पे आते हैं, पब्लिश और शो योर फाइंडिंग्स आफ्टर कंक्लूडिंग विद वैलिड स्टेटमेंट विच बिकम्स थ्योरी लेटर. मॉडर्नाइज स्टेप्स की हम बात करें तो इसमें 7 स्टेप आ जाते हैं, जिसमें है ऑब्जर्वेशन, यानी हम प्रॉब्लम को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आस्क अ क्वेश्चन, गैदर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेक अ गेस अ हाइपोथेसिस, मेक एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है, इट इज़ एन अप्रोच विच डील्स विद द डिटेल्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, दिस हैव डिफरेंट स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए फिर हम टेंटेटिव उसके लिए हम डिफरेंट आइडियाज़ को देखते हैं, फिर उसमें हम जो प्रॉपर आइडिया होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं. Steps of problem solving approach can identify problem, analyze the problem, identify decision criteria, develop multiple solution and choose the best or optimal solution. There are 5 characteristics of inquiry based method. Bloom taxonomy है, ask question answer that motivate the students, utilize wide variety of resources है, teacher as a facilitator, meaningful products come out of inquiry based learning. ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में जैसे कि आपको पता है इसके 6 लेवल हैं. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आस्क्स क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी. फर्स्ट 3 स्टेजेस जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये जो है वो लो लेवल ऑफ लर्निंग है, जबकि एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन जो है ये हायर ऑर्डर लर्निंग में आ जाती हैं. तो इसमें देखते हैं कि इंक्वायरी बेस्ड मेथड में कि कहाँ पे कौन से लेवल पे आप फॉलो कर रहे हैं, बच्चों का लेवल आप जो है वो मैयर करते हैं कि कौन से लेवल पे बच्चे जो हैं वो पहुँचे हैं. ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम इसको देखेंगे, इसके रिवाइज वर्जन को देखें तो इसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आस्क क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द हायर ऑर्डर ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसको रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग
एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, इसका नाम दिया गया, ठीक है। जिसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रिमेम्बरिंग में आप डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड, अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस, आउटलाइन, अप्लाइंग में आप यूज, इलस्ट्रेट, एनालिसिस में आइडेंटिफाई, कंपेयर, इवैल्यूएशन में डिसाइड, प्रायोरिटाइज और क्रिएटिंग में आप क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। Ask questions that motivate the students. Inquiry based learning involves questions that are interesting and motivate the students. Utilize wide variety of resources in which inquiry based method utilize the wide variety of resources so students can gather information from different opinions. यानी कि आप डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करते हैं और फिर अपनी ओपिनियंस उस पर देते हैं। टीचर का रोल है यहाँ पे फैसिलिटेटर का है, गाइड है और फैसिलिटेटर है जस्ट। टीचर एज अ गाइड, इसमें टीचर ने जो है वो सिर्फ आपको केयरफुल, आपको इनकरेज करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपको ऑब्जर्व करेगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी और आपके साथ टीम वर्क भी करेगी, लेकिन आपको सारा जो है फोकस उनका जो है होगा वो आपकी एंटायर प्रोग्रेस पे और टीम बिल्डिंग पे, और आपको जो है वो आपने इंक्वायरी बेस में आपने स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। दिस इज द समरी ऑफ एंटायर यूनिट। Hope so you can understand today's lecture. Allah Hafiz.